हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ऑप्शनल चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है जब भी वो यूपीएससी के अंदर में स्टेप इन कर रहे होते हैं, या फिर इवन स्टेप इन करने के बाद इफ़ यू आर चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑन अ लेटर टाइम फ्रेम। पहले आपने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया, फाउंडेशन को बनाना शुरू किया, बाद में आपके दिमाग में आता है या कभी आप टॉपर्स के भी इंटरव्यू को सुनते हो कि ऑप्शनल को आपको पहले करके रख देना चाहिए, साइड में कर देना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग थिंग। आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो अल्टरनेटिंग वे, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द फाउंडेशन और गो थ्रू द एनसीईआरटीज बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑप्शनल, बट अ लॉट ऑफ टॉपर्स दीज डेज do prefer to firstly conclude the optional subject, specifically if the optional subject is static in nature and it is shorter. So we are going to discuss mainly why to choose anthropology as an optional, and the second very related question that is going to be automatically answered by this session is how to choose. All right, so it is not only about why to choose a certain optional ABC, but also the art that makes you able or enables you to choose the right optional. Now in UPSC, every option is the right option. You cannot say with a certainty that this particular optional is going to give me more marks if I do prepare with the same amount of zeal and hard work as compared to the other optional. है ना? तो जो पाला है दोनों का, इनफैक्ट तीनों जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शनल मेजर जितने ऑप्शन हैं आपके लिस्ट के अंदर में, कुछ 5-6 ऑप्शन जिनको मेजर ऑप्शन कहा जाता है, उसमें से भी यूपीएससी ने कुछ पिछले, अगर आप 10 से 15 साल के स्टैटिस्टिक्स को देखते हो, कहाँ से? यूपीएससी की खुद की एनुअल रिपोर्ट से, तो आपको देखने को मिलेगा विद अ कंसिस्टेंसी देयर आर 3 ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी, वेयर द सक्सेस रेट throughout this tenure of 10 to 15 years is more than 8.4%, nearly 8.5% or more than that, which is a pretty big achievement to maintain for a very long period, specifically when the influx of the student in these subject is also pretty high. These 3 options also happen to be the optional जहाँ पर बच्चे सबसे अधिक आ रहे हैं. The average inflow in these 3 options is around 1250 per year who are appearing mains. I'm not telling about the people who are choosing it as an optional. UPSC does not give the data of the people who are choosing a certain optional every year. It gives the data that out of the candidates who have prepared for the examination, UPSC cleared the prelims, appeared for the mains, they were sitting for the mains, and then they were selected. So ये सिर्फ 2 लेवल का आंकड़ा दे रहा है कि मेंस में कितने बैठे एक ऑप्शनल के साथ और उसमें से सेलेक्ट कितने हुए, है ना? तो मेंस में अगर यहाँ पर 1250 बच्चे बैठ रहे हैं, तो द मिनिमम नंबर, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इज क्लोज टू 8.5% in all these 3. Some year any one of these option is going to have an edge over the other. It may have 9% or 10% success rate. Specifically if we see from 2017 to 2022-23, anthropology is clocking a success rate of around 10% in most of the years. In most of the years, it is having this 10% success rate. And if we are basically discussing about the toppers, the genuine toppers, the top 10, the big 10, you know, getting recommended, getting selected is a different thing, and getting a rank which is in top 10 is a totally different game. So if we analyze from that point of view, that which option is giving most of the toppers from AIR 1 to AIR 10, it is going to be anthropology with a very big margin. Very big margin. You see the statistics of 2017, out of the 10 candidates who secured from only rank 1 to 10, 4 of them were from anthropology optional. 4 of them were from anthropology optional. And it's a big deal. All right? Specifically, the first ranker, 2017, Anudeep Durashetty, he was also having this particular option. The next year again, the second rank, Akshat Jain, you must have heard his name, only rank 2, scored 335 out of 500, which is an enormous, gigantic feat, given that you are not having any background in this particular subject. And for the next 2 years, the same pattern followed. In 2020, again, All India rank 1, Shubham Kumar from this particular option.
We jump to 2022-23, both the years, the most recent years, the top 5 rank had 2 anthropology optional students. All right. And in 2022, out of top 10, there were again 4 rankers from this particular option. So it seems like success is pretty much working with anthropology when we talk about the optional subject in UPSC. With a humongous success rate, most number of toppers, and also a very high average score amongst the toppers. If you see, for example, I have discussed Akshat Jain. He was not having anthropology as his graduation, post-graduation subject. Still, he was able to secure 335 in 2018. And it was not a one-time miracle. Many students post that from engineering, from law, from computer application, from medicine have secured similar marks. Take the example of Wasim Bhatt. He also, I think, in 2020 scored 335. If we go in the past, Lakshmi Nagappan, she was not one of the top 10 or top 15 ranker. Still, she was able to score one of the highest marks in anthropology in the recent years. That was 362. More than some of the candidates are scoring in most objective subjects like physics, mathematics. इससे भी ज़्यादा नंबर वहाँ पर आए. For example, mathematics topper, if you see, the most noted topper in the recent year, Kanish Kataria, he was able to secure 361 from a very objective subject. And Lakshmi Nagappan, from this partially objective, partially subjective, optional, she was able to manage 362 marks. All right. So I think अभी तक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस ऑप्शन की खासियत क्या है, खूबी क्या है. अब ये खासियत, ये खूबी आप कैसे पहचानते हो? एंड इफ यू आर स्ट्रक इन द जोन दैट यू आर नॉट एबल टू मेक अ फाइनल डिसीजन दैट ओके एंथ्रोपोलॉजी आई हैव हर्ड अबाउट इट बट आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट कि यही मेरा ऑप्शन होगा, या मेरे दिमाग में 2 से 3 ऑप्शन चल रहे हैं, तो उस डाउट को सॉल्व करने का भी आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर आज सिखाने वाला हूँ, है ना, जो कि यहाँ पर हाउ के अंदर आएगा. वाई का तो मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया कि एंथ्रो की क्या महिमा है पिछले कुछ सालों में. अब हाउ के बारे में भी आप थोड़ा बहुत सुनते चलिए. ठीक है, लेट अस ट्राई टू एड्रेस दैट. हाउ, जब हम इस हाउ की बात कर रहे हैं, हाउ टू चूज अ पर्टिकुलर ऑप्शन इन यूपीएससी, आपको कुछ 5-6 रूल्स या प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है ना. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज, आर यू फाइंडिंग द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग? क्या सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है ना. इसको मैं बहुत ऊपर लिख रहा हूँ, अक्सर लोग दूसरे पॉइंट्स को ऊपर लिखते हैं, बट आई थिंक इन टूडेज एज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ शॉर्ट वीडियोज, शॉर्ट क्लिप्स, reels, and a lot of other stuff, which has significantly reduced our attention span. हमारा जो अटेंशन स्पैन हो गया ना, बहुत कम, बहुत छोटा हो गया है. रीडिंग के ऊपर लॉन्ग टाइम एक्टिविटीज़ जो इस तरीके की हैं, उसमें हमारा मन ज़्यादा लग नहीं रहा है. ऑडियो विजुअल कंटेंट हमें ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है. तो कोई टॉपिक बुक में पढ़ने की कोशिश की, मन ही नहीं कर रहा है, बुक बंद कर दी, उसी को हम लेक्चर को ढूंढने लगे यूट्यूब के ऊपर. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस, ट्रस्ट मी, pretty much everybody in today's world is having this issue. Short attention span, है ना. इतने पेस वाले इन्वायरमेंट के अंदर में हम जी रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम यहाँ पर जी रहे हैं. सो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है अपने ऑप्शन के अंदर में, तो आप उसको पूरा कर भी नहीं पाओगे, और पूरा करने के बाद आप उसके साथ एक रेपो को मेंटेन नहीं कर पाओगे कि पूरा करने को तो कहने को तो हो गया, बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. इन दैट सिनेरियो आप क्या करें? ठीक है ना. So firstly, try to identify the option that interests you. How do you find an option that interests you? A big question. Go through the syllabus, the entire syllabus. And when I ask students to go through the syllabus, most number of times they just do the reading of the units. Okay, unit 1 is about this, 2, 3, 4. Try to ponder over, generate some thought. थोड़ा अपने minds में thought को bombard कीजिए, है ना, कि अच्छा ये यहाँ पर है. मैरिज का रूल अगर लिखा हुआ है, मैरिज के रेगुलेशन लिखे हों, तो क्या होते होंगे रूल्स, क्यों, क्या रेगुलेशन होते होंगे, हम इन्हें क्यों पढ़ते होंगे, और ये रूल्स रेगुलेशन क्यों एग्जिस्ट करते होंगे. कुछ बेसिक जो बुक्स हैं उसके ऊपर से 1-2 यूनिट की रीडिंग कीजिए. कुछ टीचर्स के लेक्चर्स को, हमारा तो मोस्ट ऑफ द बहुत सारा कंटेंट हमने यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ताकि कई बार जो बच्चे होते हैं जो अर्ली एज में ही प्लान कर रहे हैं यूपीएससी को, अर्ली कॉलेज ईयर्स में या फिर लेटर स्कूल डेज में, 12वीं में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, और वो अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं 1-2 साल बाद, तो एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत देख सकें. या फिर ऐसे जहाँ पर फाइनेंशियल इशू, ऑल्दो वी ट्राई टू मेक दी कोर्सेज एक्सेसिबल टू
एवरीवन, प्रीटी मच एवरीवन। ऑफलाइन में आप टेस्ट सीरीज के साथ और बाकी जितनी फीचर्स हम देते हैं उसके साथ आप जाते हो अच्छे इंस्टीट्यूट में तो प्राइजेस आपके 1 लाख के आसपास होते हैं, है ना। इट रेंजेस फ्रॉम 80,000 टू 1.25 लाख रुपीज़। ऑप्शनल की सिर्फ बात कर रहा हूँ, जीएस फाउंडेशन की नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में जाइएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास कोई हमें कमरा खड़ा नहीं करना है, 50 लोगों को खड़ा नहीं करना है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से, मेंटेनेंस के पर्पज़ से, कोई रेंट नहीं उस तरीके का करना है, ठीक है ना। जाइजेंटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और बाकी बिल्स को वहाँ पर नहीं मेंटेन करना है। सो हम इस चीज़ को आपके लिए क्या कर पाते हैं, ज़्यादा एक्सेसिबल बना पाते हैं। और अराउंड 15-18,000 के आसपास में आप हमारे ऑप्शनल कोर्सेज़ को मोस्टली हर टाइम ऑफ ईयर में, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, कभी दिवाली होली होती है तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, तो अराउंड एवरेज 15,000 के आसपास आप किसी भी टाइम पे हमारे कोर्सेज़ के अंदर में एनरोल कर लेते हो। बट डिस्पाइट दैट हमने एक्सेसिबल बनाया है कंटेंट को यूट्यूब पे भी, कि अगर ये भी किसी के लिए, वी डू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डायनेमिक्स ऑफ द कंट्री, सो ये भी अगर किसी के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो वो यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत ज्ञान को फ्री ऑफ कॉस्ट अर्जित कर सके। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स की भी वीडियोस को देख सकते हो, अलग अलग मटेरियल को रेफर कर सकते हो, कुछ 2-4 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके ऊपर पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। कई बार क्या होता है कि यूनिट तो 50 के ऊपर है, 6-6 सेक्शन है, एंड वी आर आइडेंटिफाइंग सर्टेन यूनिट जो हमें इंटरेस्ट आउट कर रही हैं, पर बाकी हमें रिलेटेबल नहीं लग रही है, तो हमने 2-4 के बेसिस पे कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जानना, तो मैं ये सुन लेता हूँ। नो, इंटरेस्ट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वन पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड नॉट इंटरेस्टेड इन द 5 अदर सेक्शंस ऑफ द सिलेबस, दैट इज नॉट काउंटेड एज योर जेन्युइन इंटरेस्ट। हो सकता है टॉपिक आपको अच्छा लगता हो, सिलेबस आपको इंटरेस्ट आउट नहीं कर रहा है, तो ट्राई टू एक्सप्लोर दिस एरियाज। क्या क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है पढ़ने में। थोड़ा बहुत कुछ बेसिक सोर्सेज होते हैं, आप अगर शुरू करना चाहो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अपनी आइडियाज़ बता दूंगा कि क्या बेसिक सोर्सेज को आप रेफर कर सकते हो, तो उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए तो इससे समझ में आएगा। सो इंटरेस्ट हैज़ टू बी द फर्स्ट एरिया जिसको आपको करना है, और आराम से बैठ के सिलेबस को 2-3 सीटिंग दीजिए, हर सीटिंग में कम से कम आधा घंटा दीजिए, मिनिमम 45 मिनट्स टू मैक्सिमम 1.5 आवर्स मैं सजेस्ट करता हूँ कि इतना समय तो देना ही आपको सिलेबस के आसपास। देन आजकल के टाइम फ्रेम में जहाँ हमने बताया कि यूपीएससी इज गेटिंग डायनेमिक every year, and dynamic not in terms of the current affairs only, in the nature of the questions that are being asked, ठीक है। हिस्ट्री को भी काफ़ी ऐसे एंगल से पूछने लगा है कि उसमें भी आपको डायनेमिक, हिस्ट्री तो पास्ट है ना, उसको भी डायनेमिक करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पर ज़रूरी है कि ऑप्शनल आपका जो हो वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एंड स्टैटिक हो। अब ये शॉर्ट की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट मीन्स शॉर्ट, चाहे वो अक्रॉस द लेंथ बात हो, चाहे वो अक्रॉस द डेप्थ बात हो। मतलब क्या है, लेंथ में अगर आप काउंट करो तो कुछ ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ी सी ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा होने से वो ऑप्शनल बड़ा, या किसी में नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कम है तो छोटा नहीं हो जाता है। एक टॉपिक के अंदर में कितनी डेप्थ दी गई है, दैट ऑल्सो मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल इन ह्यूमैनिटीज आस्क यू टू गो थ्रू और रीड अबाउट सर्टेन थिंकर्स एंड देयर थ्योरीज। नाउ व्हेन यू रीड दीज थिंकर्स एंड देयर थ्योरीज, you'll find कि this is a ever expanding world, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं थॉट्स थ्योरिस्ट, 50 थ्योरिस्ट 100 थ्योरिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए एक बैरियर को क्रिएट नहीं करता है, वो आपको फोकस दिलवाने की कोशिश करता है, क्योंकि यू हैव टू रीड अ थ्योरी कॉल्ड एज evolutionism, classical evolutionism. You have to read a theory called as functionalism. You have to read a theory called as structuralism. So it will tell you who are the scholars that you are going to read. वो आपके लिए ओपन एंडेड नहीं छोड़ेगा, वो आपको बता रहा है कि आपको सिर्फ इवोल्यूशनिज्म में आप 12 स्कॉलर्स को पढ़ते हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो आपको कह रहा है कि मुझे सिर्फ टाइलर, मॉर्गन के बारे में और फ्रेजर के बारे में बताइए। स्ट्रक्चरलिज्म में मुझे आप सिर्फ 1-2 स्कॉलर, प्राइमरली लेवी स्ट्रॉस पे ही पूछता है घुमा फिरा करके, उनके बारे में बता दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या किया है, आपकी अप्रोच को काफ़ी नैरो डाउन किया है, ओपन की जगह क्लोज्ड किया है, तो डेप्थ इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी कम हो जाती है ना। और नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होने से भी आपको वो बोझ नहीं महसूस होता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है लाइक अदर ऑप्शनल, लेकिन डेप्थ को काफ़ी कम करके, कंट्रोल करके यहाँ पर रखा हुआ है। और डिमांड जो है उसके बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो इट डज नॉट डिमांड यू टू थिंक अ लॉट। बहुत सारी जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं ना, वहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप सोच नहीं सकते हो किसी चीज़ के ऊपर अलग अलग एंगल से, तो आपको दिक्कत महसूस होगी। एंथ्रो में एटलीस्ट टिल नाउ, अभी तक वो बहुत सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मेरा मानना है कि आने वाले 4 से 5 साल ऑप्शन अगर रहता है, जो कि चांसेस हैं कि रहेगा,
रहता है तो एंथ्रो भी शायद वैसा होता जाएगा, बट वी होप कि 4-5 साल बाद आपको वेट ना करना पड़े, उससे पहले आप सिलेक्शन को अपने इंश्योर कर लो। क्योंकि बाकी ऑप्शनल के साथ ये चीज़ 2016-17 के पास से ही शुरू हो गई है। एंथ्रो में ये चीज़ जो है ये 2021 के बाद से ग्रेजुअली शुरू हुई है, बहुत कम डिग्री में। 2023 में भी हमें पेपर 2 में वो झलकियाँ देखने को मिली, सॉरी 2024 के अंदर में वो झलकियाँ हमें देखने को मिली, ठीक है ना। तो ग्रेजुअली ये करता जाएगा। बाकी ऑप्शनल तो और आगे उस समय पहुंच जाएंगे, अभी इतने डायनामिक है उस समय तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन एंथ्रो में भी ऐसा नहीं है कि इतना ही आसान हमेशा आपके लिए रखेगा। भैया इतने टॉपर्स दे रहे हैं, इतनी रैंक दे रहे हैं, इतनी सक्सेस दे रहे हैं, तो थोड़ा कुछ तो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे अभी तक। लेकिन क्या सिनेरियो है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड, एंड दैट इज द बेस्ट क्वालिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। इट विल रिपीट द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन PYQ, उसको रिफ्रेश कर देगा दूसरे एंगल से। इधर से कान पकड़ा है तो इधर से कान पकड़ लेगा, मॉडिफिकेशन कर देगा, पर पूछेगा वही आपसे। सो ये चीज़ भी आपको काफ़ी देखनी है कि सिलेबस शॉर्ट रहे आपका, ठीक है। स्टैटिक की बात जहाँ पर करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल ना है, जैसे हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का रोल नहीं आता है, ठीक है ना। तो वैसे ही एंथ्रो के अंदर में जो स्कोप ऑफ करंट अफेयर्स है वो हाईली लिमिटेड है। पेपर 2 में कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर में आपको न्यूअर केस स्टडीज़ वगैरह को देखना पड़ता है, वो भी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे यहाँ आप पढ़ रहे हो तो आपको जो हैंडआउट्स मिलते हैं, जो एनरिचमेंट या वैम के मटेरियल मिलते हैं, या फिर कई बार यूट्यूब के वीडियोस। इस बार आप मानिए हमारी 3-4 सीरीज चलती है एंथ्रोपोलॉजी की मेन चैनल के ऊपर, जो स्टडी IQ IAS वाला चैनल है, उस चैनल के ऊपर एक सीरीज़ है एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स, एक है एंथ्रो लेंस। लेंस में हम डायनेमिक एस्पेक्ट को कवर करते हैं, फिंगर टिप्स में कंसेप्चुअल को करते हैं, और एक है डीमिस्टिफाइड सीरीज। फिंगर टिप्स में से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आया, 30 नंबर का क्वेश्चन आपका एंथ्रो लेंस से आया, और आपका क्वेश्चन पेपर का सबसे जो पहला क्वेश्चन था एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर 2024 में 10 मार्कर शॉर्ट नोट, वो हमने पेपर से जस्ट 12-18 घंटे पहले शूट किया था। तो हमारा लास्ट वीडियो पेपर से एक दिन पहले का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मेरे ख्याल से 28 सितंबर को पेपर रहा होगा। तो उससे पेपर तो दोपहर में था, और पेपर 1 अर्ली शिफ्ट में होता है, फर्स्ट शिफ्ट में होता है। उससे लगभग 12 घंटे पहले हमारा चैनल पे एक वीडियो गया था एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर, दैट वाज द लास्ट वीडियो ऑन द चैनल, एंड दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि मेरी कोई खूबी है या मैं UPSC वालों के साथ या एग्जामिनर के साथ बैठ रहा हूँ। इट वॉज समथिंग दैट एनी वन हु इज विद दिस सब्जेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड कैन प्रेडिक्ट कि हाँ इन एरिया से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी सीरीज से ही कितने आ जाते हैं जो क्वेश्चन है ऑनलाइन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट स्टैटिक को देखिए, ज़्यादा करंट अफेयर्स वाले को आप देखते हो तो कभी खत्म नहीं होता है, त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाते हो, ना और पता चल रहा है ना छोर पता चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, इंटरेस्टिंग हो, शॉर्ट एंड स्टैटिक हो। क्लासिकली जो बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज चीज़ होती थी कि भैया किस चीज़ को देखना है आपको, वो है ओवरलैपिंग को। बच्चे ज़्यादातर ओवरलैपिंग को बड़ा देखते थे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जिसको हम यहाँ पढ़ लें ऑप्शनल में, उससे GS में भी हेल्प हो जाए। तो आज ऐसा रहा नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन वाइज आप अलग अलग ऑप्शंस को, जैसे आप सोशियो में भी ये कहा जाता है, फिलॉसफी में भी ये कहा जाता है, साइकोलॉजी भी ऐसा कह सकता है, PSIR भी ऐसा कह सकता है, हर दूसरा, और एंथ्रो भी ऐसा कहता है कि हम एथिक्स में भी हेल्प कर देंगे, हम एसए में भी बहुत हेल्प कर देंगे, हम इसमें उसमें बहुत सारे हेल्प कर देंगे। बट ये सारी जो हेल्प होती है ना, ये इनडायरेक्ट हेल्प है। कभी भी अगर आपको ओवरलैपिंग को देखना है तो ओवरलैपिंग को आप डायरेक्ट टर्म्स में देखिए कि मैंने जो क्वेश्चन इस जगह पर पढ़े हैं वो क्या डायरेक्टली या पैराफ्रेज करके, कंटेंट आंसर ना बदले, बस पैराफ्रेज कर दे, ठीक है, अलग स्ट्रक्चर हो जाए, थोड़ी सी डिमांड बदल जाए, और उसको पूछ ले हमारे GS में या GS का पूछ ले ऑप्शनल में। तो ऐसा अगर हो तब तो हम उसको कहते हैं ट्रू, जेन्युइन या डायरेक्ट ओवरलैपिंग। और डायरेक्ट ओवरलैपिंग आपको 120 नंबर से ऊपर मिलने के स्कोप सिर्फ 2 ऑप्शन में होते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि 1-2 ईयर ज़्यादा हो गया फिर कब, कंसिस्टेंसी के साथ 90, 100, 120 प्लस एक ही 2 ऑप्शनल है, जैसे PSIR और एंथ्रो है, PSIR और एंथ्रो है। अब एंथ्रो में फॉर एग्जांपल आप इंडस वैली को उसी तरीके से पढ़ते हो जिस तरीके से आपको GS के अंदर में पढ़ना होता है, या एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, कई सारी चीज़ें होती हैं, ट्राइबल वाला जो पार्ट है उससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। और इवन प्रीलिम्स में माना जाता है कि प्रीलिम्स में भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब हेल्प करेंगे, बाकी सब्जेक्ट उतना हेल्प नहीं करेंगे। 2024 का आप प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, हाफ अ डजन के आसपास या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एंथ्रोपोलॉजी से आए थे, डायरेक्टली एंथ्रोपोलॉजी से आए थे। सो ये एक ओवरलैपिंग भी एंथ्रोपोलॉजी देता है। कहाँ कहाँ देता है मैं आपको बता दूं, जैसे GS1 में आप देखोगे ना, GS1 में आपका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, पूरा का पूरा से मेरा मतलब है जो एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल वाला जो पोर्शन है, लोअर पेलोथिक से लेकर के मिडल, अपर, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये जितना पोर्शन है आपका,
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली, इवन महाजनपदास के जो आर्ट वाला पीरियड है, कई सारी जो केव आर्ट को आप आर्ट एंड कल्चर के साथ जोड़ करके देखते हो, भीमबेटका है, पंचमढ़ी वगैरह आपको देखने को मिलती है, कई सारे जो आर्ट फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, इन सब का जो इन्फ्लुएंस आप देखते हो इंडियन सोसाइटी के ऊपर, जो आर्ट एंड कल्चर का आपका पार्ट रहता है, लिटरेचर से लेकर के, म्यूज़िक से लेकर के बाकी सारी चीज़ों पे, ये भी आपका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में कवर हो रहा होता है। देन आपके लैंग्वेजेस वाला जो पार्ट है कई सारा, वो भी यहाँ पर कवर होता है। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन और रेशियल क्लासिफिकेशन इज गिवन इन द नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, स्टडी IQ में भी शायद दिया होगा, जो हमारी बुक है, और भी कई सारे जगहों पर आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ते हो दोनों को, क्लासिफिकेशन को, ठीक है ना। ये पूरा क्लासिफिकेशन आप उससे भी ज़्यादा डिटेल में मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में पढ़ते हो। GI टैग में से कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आजकल आप खासकर देख रहे हो, जो हैंडीक्राफ्ट या फिर एथनो मेडिसिन या एथनिक नॉलेज ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी को दी जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ तो सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हो, इसलिए आप भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट वहाँ पर जब हम उस चीज़ का कवरेज करते हैं तो आप उससे रिलेट कर पाते हो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस एट टाइम्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाती है। देन मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करो तो आप पीजेंट रिवोल्ट को, ट्राइबल अनरेस्ट को, इन सबको पढ़ते हो, ट्राइबल रिवोल्ट को, है ना। वहाँ पर गोंड मूवमेंट भी आपको संथल्स की मूवमेंट देखने को मिल रही है, भील्स की मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, मुंडा की रिवोल्ट देखने को मिल रही है, तो कई सारे ऐसे मूवमेंट हैं, इनको आप पढ़ते हो, ये भी कवर होता है। तो GS1 में ये पूरा पोर्शन प्लस आपका जो सोसाइटी वाला पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ सोसाइटी वाला जो पोर्शन है, वो पूरा पोर्शन यहाँ पर कवर होता है एंथ्रो के माध्यम से। देन आपका GS2, 3, 4 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हर जगह यहाँ पर कवरेज आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर में आपको मिले, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही है, कहीं खालिस्तान का इशू है, कहीं पे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का इशू आपको देखने को मिल रहा है, साउथ में आपको किसी तरीके की इशू देखने को मिल रहा है, अभी भील प्रदेश की मांग हो रही थी राजस्थान में, आपने कुछ महीने पहले देखा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर एंथ्रो के अंदर में कवर होती है, इंटरनल सिक्योरिटी का जो पोर्शन है। देन पॉलिटी से भी आपका कई सारी चीज़ कवर होती है, जैसे पंचायती राज है, जैसे पेशा वाला जो पूरा पार्ट आप पढ़ते हो, ग्राम सभाओं का रोल, गवर्नर का रोल, अभी 6 शेड्यूल काफ़ी चर्चा में था, तो 5th शेड्यूल, 6 शेड्यूल, उसके अंदर के जो कई सारे प्रोविजंस हैं, विमेन के, चाइल्ड के, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लिए कई सारी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स वगैरह, करंट अफेयर्स में भी आपको हेल्प करती हैं, वो योजनाएं, वो स्कीम्स, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स उनके किसी तरीके के प्रमोशन या प्रिवेंशन के लिए है, उनको भी आप पढ़ते हो। तो डजन्स ऑफ आर्टिकल भी आपके कई सारे वहाँ पर कवर हो जाते हैं। एक आर्टिकल प्रीलिम्स में भी आया था इस बार, ठीक है ना, रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ दी ट्राइबल, प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर से वो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, जो कि अगेन आपका डायरेक्टली कवर होता है यहाँ पर। सो वहाँ पर प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प मिल रही है, यहाँ पर भी आपको पॉलिटी के अंदर में हेल्प मिल रही है। प्लस आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से लेकर इम्यूनोजेनेटिक्स, बहुत सारे पार्ट जो है वो आपके यहाँ पर डील हो जाते हैं, है ना। कई सारी चीज़ आपकी पढ़ाई जाती है जो हो सकता है डायरेक्टली ना पूछती हो, वो भी सेल डिवीजन वगैरह आपको कई बार कराया जाता है, ये सारी चीज़ भी आपके यहाँ पर हो जाती है, सेल क्या है, सेल साइकिल्स क्या है, ठीक है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो भी आपका अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो एडवांटेजियस फीचर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो तो सोशल जस्टिस, एथिक्स के अंदर में, एसए के अंदर में, जैसे हर ऑप्शन हेल्प करते हैं वो आपको हेल्प मिलेगी, बट उतनी डायरेक्ट को आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू लाइक कि डायरेक्ट कोई चीज़ आपने पढ़ी वहीं आपकी एसए में आ गई। प्रॉबिलिटी रहती है, 1-2 साल में ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होना है कि एसए में आपको 20-25 आपको आधा पोर्शन या पूरा पोर्शन आप उससे कर ले जा रहे हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ओवरलैपिंग भी सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। अगली क्या खूबी आप अपने ऑप्शन के अंदर में ढूंढते हो, अगली क्या खूबी आप ढूंढते हो जो कि मेरे हिसाब से आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये भी बहुत क्रिटिकल है कि जिस भी आप ऑप्शन को ले रहे हो उसके गाइड या फिर टीचर्स, एजुकेटर्स एंड जो उसके रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, ठीक है। देखिए, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है ना, उसकी सप्लाई को भी मार्केट फोर्सेस अवेलेबल कराने की कोशिश करती है। जहाँ पर डिमांड कम है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही विंटेज या एंशिएंट चीज़ होती है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, उसकी डिमांड जो है वो उतनी कम है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है और इसलिए उसके प्राइसेस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन जिस चीज़ की डिमांड है वो आपको ईजिली असेसिबल मिलती है। तो मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके 5-6 हैं यूपीएससी ने दिए हैं, अब सब्जेक्ट तो बहुत सारे, कई सारे नीश सब्जेक्ट होते हैं पर उनकी उतनी डिमांड नहीं, उसको उतने लेने वाले लोग नहीं है, तो यूपीएससी ने उनके अराउंड एक इकोसिस्टम को नहीं मेंटेन किया। जबकि कुछ ऑप्शन है जैसे आपका एंथ्रो, PSIR और सोशियो तो है ही है, इनको छोड़ के भी जैसे जो ट्रेडिशनली एक समय पे काफ़ी अच्छे करते थे, आज भी वन ऑफ द मेजर ऑप्शन है ही है,
जिसमें आप पबैड को गिन सकते हो, जिसमें आप हिस्ट्री को गिन सकते हो, ज्योग्राफी को गिन सकते हो। ये कुछ मेजर ऑप्शंस हैं जिनके गाइड्स और सोर्सेज आपको अवेलेबिलिटी हर समय देखने को मिलती है, हर जगह पर मिलती है। पढ़ाई की भी चीज़ें, टॉपर नोट भी असेसेबल है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देखनी होती है, जो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत आसानी से मौजूद है, बहुत आसानी से आपको यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाती है। देन जो एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करता और मेरा मानना है करना भी नहीं चाहिए, बट इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू फ्लेक्स, आई बिलीव यू शुड फ्लेक्स। कुछ है दिखाने के लिए तो बताइए ना, छुपाना क्यों है, कोई खराब चीज़ थोड़ा है। सक्सेस रेट एंड टॉपर्स। नाउ सक्सेस रेट में एंथ्रोपोलॉजी इज, अगर आप डेकेडल सक्सेस रेट को देखते हो एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, तो इट इज़ कंसिस्टेंटली इधर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, इसके पीछे नहीं जाती है। तो ये PSR, सोशियो और एंथ्रो आपस में लगे रहते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट है, पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड है। टॉपर्स में लेकिन फिर एंथ्रो का कोई कंपैरिजन नहीं, टॉपर्स में एंथ्रो ही एंथ्रो है। दूसरे ऑप्शन आते हैं जाते हैं लिस्ट से, आते हैं जाते हैं लिस्ट से, एंथ्रो वहीं बना हुआ है। 23 में 5 में 2 रैंक दी टॉप 5 में, 24 में फिर 22 में टॉप 5 में 2 रैंक दी और 23 में फिर से टॉप 5 में 2 रैंक दी थी। 17 में टॉप 10 में 4 रैंक दी, 22 में फिर टॉप 10 में 4 रैंक दी, 17 में ऑल इंडिया रैंक 1 दिया, 20 में फिर ऑल इंडिया रैंक 1 दिया, 18 में ऑल इंडिया रैंक सेकेंड दी, 22 में फिर ऑल इंडिया रैंक थर्ड दी। तो ये पूरा गेम सिलसिला जो है ना, ये चलता रहता है। टॉपर्स में एंथ्रोपोलॉजी इज आउट ऑफ द लीग। सक्सेस रेट में तो और भी 2 साथी हैं जो चलते रहते हैं, लेकिन टॉपर्स की जब बात आती है तो पैरेलल वर्ल्ड में, एक पैरेलल लीग के अंदर में एंथ्रोपोलॉजी वॉक कर रहा है, उस टेरिटरी पे कोई और नहीं चल रहा है। ठीक है ना, चलिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, गाइड और रिसोर्सेज वाली जो प्रॉब्लम है, ये कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को ले लें, और मेरे पास भी कई ऑप्शंस के बच्चे आते हैं, कभी मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस को तो मैं कहता हूँ कि भैया आपके लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, जस्ट लाइक फॉर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंड मे बी इनफैक्ट अगर वो हिस्ट्री से स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज़ में, तो वहाँ पर फिर उसका आर्कियोलॉजिकल भी केक वॉक हो जाएगा। तो साइंस वाले बच्चे कहते हैं तो हमारे लिए क्या केक वॉक होगा? हमने कहा कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वन ऑफ द मेजर ब्रांच जो है, इतनी सारी यूनिट है, 1.5 महीने का समय लेता है, वो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। ठीक है ना। और ह्यूमैनिटीज़ वाले फिर कहते हैं कि सर देखिए हमारे लिए फिर वो केक वॉक नहीं है। तो हमने कहा भाई कितना लालच करोगे, बाकी सेक्शन तो आपके लिए केक वॉक है, प्लस अगर आप यहाँ पर ठीक से फिजिकल को पढ़ते हो तो आप साइंस एंड टेक में भी तो अच्छा करोगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में भी तो अच्छा करोगे। तो सभी का यहाँ पर फ़ायदा है, सभी का यहाँ पर फायदा आपको देखने को मिल रहा होता है। एंड दैट इज़ वाई लॉट ऑफ टाइम्स आई सजेस्ट टू दीज स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर दिस। जैसे स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि इंजीनियरिंग वाले मोस्ट ऑफ द टॉपर्स इसी बैकग्राउंड से आते हैं, इसी बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है। मेडिकल साइंसेज वाले के लिए तो फिजिकल फिर केक वॉक होता है, तो वो तो जाहिर सी बात है। कई सारे डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर अपाला मिश्रा, डॉक्टर मयूर हजारिका, इन लोग को देखोगे। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वसीम भट्ट भी शायद मेडिकल बैकग्राउंड से थे, बट क्रॉस चेक कीजिएगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो पास्ट 5 ईयर्स में ही 10 से ज़्यादा टॉपर्स जो आपके हैं, टॉप अचीवर्स जो है, वो मेडिकल साइंसेज से, वेटनरी से, या फिर BDS वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं, आयुर्वेद से, इन सारे या फिर कोर्सेज से हैं। और इसमें हम BSc वालों की बात नहीं जोड़ रहे हैं। BSc जूलॉजी वाले जो हैं, जो लाइफ साइंसेज वाले हैं, उनके लिए भी पूरा पोर्शन केक वॉक होता है, पर उनको हम नहीं जोड़ रहे। उनको ऐड करोगे तब तो गेम ही अलग हो जाएगा। और इंजीनियर्स, ठीक है, तो इन लोग की पहली चॉइस बना है। ह्यूमैनिटीज़ वाले थोड़ा सा यहाँ पर मात खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या है। वो अभी उसी चक्कर में पड़े कि अच्छा मेरा ह्यूमैनिटीज़ है तो मैं ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट को ही, बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट को ले लूँ, और वहीं से सारी दिक्कत वहाँ पर शुरू हो रही है। बिकॉज भैया यहाँ पर भी सोशल एंथ्रो है, इंडियन एंथ्रो है, यहाँ पर भी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। तो जो आप इकोलॉजी में पढ़ते हो वो यहाँ पर भी आपका आता है, कई सारी चीज़ें। हिस्ट्री का एक मेजर चंक, एटलीस्ट 35% पोर्शन यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। सोशियोलॉजी के भी आपके कई सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सोसाइटी में आपको ओवरलैप दिलाती हैं, वो भी आपके यहाँ कवर हो जाती हैं। तो ये वहम में मत रहिए कि एंथ्रो आप नाम नया है तो कुछ अलग है। एंथ्रोपोलॉजिकली स्टार प्लस का वो जो एक क्या टाइटल या कुछ था ना, प्रमोशनल जो उन्होंने यूज़ किया था कि रिश्ता नहीं, वही सोच नहीं, तो वही है। पैकेजिंग इज़ न्यू फॉर एंथ्रोपोलॉजी, बट द कंटेंट इज लार्जली द सेम दैट यू हैव स्टडीड इन द ग्रेजुएशन ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर्स, स्कूलिंग डेज, और दैट यू आर स्टडीइंग इन द GS पोर्शन ऑफ द UPSC। सो ट्राई टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट, है ना। और बैकग्राउंड के चक्कर में कई बार आप पढ़ते हो तो सबसे बड़ा जो मार होती है ना, आपको यहीं पे देखने को मिलती है। गाइड और रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो आप जर्नी में अकेला महसूस करते हो। बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट ले लिया, साइंस से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है वो ले लिया, फिजिक्स वगैरह ऐसे सब्जेक्ट को आप लेते हो तो डिस्कनेक्टेड फील करते हो। एक तरफ आपकी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है UPSC की, GS वगैरह की, वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, सोशल साइंसेस की तरफ लीनिंग है, और दूसरी तरफ आपका ऑप्शन अलग से भागा जा रहा है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। दूसरे बच्चे को देखते हो तो आपको थोड़ा सा एनवियसनेस भी होती है कि इज़ एबल टू जेल इन वेल
विथ बोथ दी ऑप्शनल एंड द जीएस, बिकॉज दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है। पर मेरी तो गाड़ी अलग चल रही है, किस रास्ते पे उस रास्ते पे, तो कई बार फोमो भी आ जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता है, खासकर जब आप ऑनलाइन प्रिपेयर करते हो और आपके पास एक रेगुलर मेंटोर या गाइड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये दिक्कत आपको कई बार आती है। ठीक है ना, तो ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख करके चलना है। और जब मैंने कैलकुलेशन किया तो इन सारे फैक्टर्स में जो सबसे बेहतर ऑप्शन आ रहा था अनडाउटेडली वो एंथ्रोपोलॉजी है। लेकिन आप मेरी बात या किसी और की बात बिल्कुल भी मत मानिएगा। एनुअल रिपोर्ट आपके फिंगर टिप्स पे हाजिर है, यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको सिर्फ जाना है। सक्सेस रेट, टॉपर्स का डाटा भी आपको इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। गाइड एंड रिसोर्सेज का आपको मैंने बताई दिया कि इट इज़ नॉट अबाउट एंथ्रोपोलॉजी बट मेजर ऑप्शनल के जहाँ पर डिमांड है वो चीज़ें हैं। अब एग्रीकल्चर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, लाइफ साइंसेज, ये सारी चीज़ों को आप देखते हो कई बार, है ना। बॉटनी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन तो मान लिया है ही नहीं ऑप्शनल, लॉ वगैरह का, इनका मटेरियल उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा तो एट पार ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो वो दिक्कत आती है। और टीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, और जो है उन्हीं के साथ आपको काम चलाना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करना है आपको। ओवरलैपिंग मैंने बता दिया कि सिर्फ 2 ऑप्शन है जो कि हर साल आपको 90 से 120 या उसके ऊपर की डायरेक्ट ओवरलैपिंग दे सकते हैं। इनडायरेक्ट के कभी भी आप फेक प्रोमिसेस में मत पड़िएगा, वो बोल दिया जाएगा पर पेपर देने जाओगे तो आप कुछ भी ऐसा कनेक्शन नहीं महसूस होगा आपको। ठीक है ना। शॉर्ट स्टैटिक मैंने बता ही दिया, और ये चीज़ तो आप सिलेबस को देख करके भी पहचान सकते हो। सिलेबस को ही जो भी आपके दिमाग में 50 ऑप्शन तो होंगे नहीं, आपके दिमाग में कुछ 2 या 3 सॉर्ट डाउन आपने किए होंगे कि हाँ चलो ये 2 या 3 या मैक्सिमम 4, उन 4 को आप कंपेयर कर सकते हो। एक हफ्ते के अंदर में 2-2 दिन दीजिए तो भी, 1.5 दिन 2-2 दिन दीजिए तो भी हो जाएगा। ऑलराइट। और इंटरेस्टिंग इज समथिंग दैट नोबडी कैन टेल यू, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और आपको बता सकता है। इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। तो सारा पूरा फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूले के ऊपर आप मार्किंग देना शुरू कीजिए अलग अलग ऑप्शन को, कि अच्छा इंटरेस्ट में मुझे 10 में से 10 ये सब्जेक्ट, 10 में से 9 ये सब्जेक्ट, 10 में 8 ये सब्जेक्ट। गाइडेंस एंड रिसोर्सेज के बेस पे ये सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा मुझे एक्सेसिबल लिख रहा है, टॉपर्स नोट भी है, सब कुछ है, यूट्यूब के लेक्चर्स भी कई सारे मिल रहे हैं, इस वाले में थोड़े से कम है। सक्सेस रेट टॉपर में इसमें 10 में 9, इसको 10 में से 8। तो ऐसे फाइनल पॉइंट्स जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास भी वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। सो ट्राई टू चूज दी ऑप्शन वाइजली, इट इज़ लाइक मैरिज इटसेल्फ, लंबा रिश्ता है यहाँ पर, तो सोच समझ के जाना है आपको यहाँ पर। हमारे जो बैचेस है अगर आप डिसाइड कर लो, और अगर एंथ्रोपोलॉजी होता है कोई और होता है तो कोई बात नहीं है, आप मुझसे उसके लिए भी सजेशन ले सकते हो कि सर मैंने ये फाइनल चूज़ किया है और क्या मेरा फैसला ठीक है। मैं वहाँ पर बता दूंगा अगर ठीक होगा, इस फॉर्मूले पे सही बैठता होगा। तो अगर आप एंथ्रो ही चुनना चाहते हो कि सर आई हैव टू चूज एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन ओनली, देन हमारे जो लेटेस्ट बैच है फ्रेश बैच का मतलब पेपर 1 यूनिट 1.1 से स्टार्ट होने वाले बैचेस, ये 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी इसकी सेकंड एक ओरिएंटेशन हुई है, बीच में छुट्टी आ गई थी सैटरडे संडे की, फ्राइडे को ओरिएंटेशन हुआ था, अगला ओरिएंटेशन वेंसडे को शेड्यूल्ड है। तो क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई है। क्लासेस कब से शुरू होंगी? क्लासेस प्रॉपर्ली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी मंडे से, आज ट्यूसडे या वेंसडे को आप देख रहे हो, इसके बाद वाला जो मंडे है उस मंडे से हमारी प्रॉपर क्लासेस, डेली क्लासेस जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो आपके पास अभी भी टाइम है, बिकॉज इसके बाद एटलीस्ट होली तक कोई नया फ्रेश बैच नहीं आएगा। ठीक है ना। तो 15 ऑफ नवंबर इज़ द डेट। चूज़ आप इसको कर सकते हो 22-25 के बीच में कर लो आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैच क्लोजिंग मंथ के अंत में होगी, उसके बाद एडमिशन्स नहीं लिए जाएंगे। प्राइस क्या है? 14,999 इज़ द प्राइस, द फी ऑफ द कोर्स। कैसे मिलेगी? यूएस लाइव का कोड अप्लाई करना है आपको एडमिशन लेते समय। यहाँ पर लाइव क्लास है, 18 महीने का रिकॉर्डेड वीडियो और कंटेंट का एक्सेस रहेगा, यानी कि जिस दिन से लिया 1.5 साल तक का एक्सेस है। तो कोई चिंता नहीं करनी, बीच में ब्रेक आया, कोई दिक्कत आई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आ गई, तो आपका अगर वो ब्रेक लग रहा है तो उसको भी आप कवर कर लोगे, बिकॉज कोर्स तो आपका जितने समय में खत्म हो जाए उतने 4 गुना ज़्यादा आपके पास वैलिडिटी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज़ भी है यहाँ पर, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ पेपर आप देते हो। और इनके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग कि आपको मॉडल आंसर्स भी इसके मिलेंगे। मॉडल आंसर्स के साथ मेरे द्वारा एक रिकॉर्डिंग किया हुआ इसका एक सॉल्यूशन भी मिलेगा, मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसको। और इवैल्यूएशन भी प्रॉपर आपका टॉप नॉच होता है। जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं उनके खुद के एवरेज 280 के आसपास मार्क्स आए, कुछ है 240-44, कुछ 260, एंड देयर आर कपल ऑफ देम हु हैव स्कोर्ड 295 प्लस, 304, 297, ऐसे भी 2 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी आपका आसानी से हो रहा है, बढ़िया तरीके से आपका होता रहेगा। कंटेंट में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, बिकॉज दूसरे जगहों पर आपको यूजुअली एक कंपाइल्ड बुक दे दी जाती है, कोई हैंडआउट दे दिया जाता है। यहाँ पर वो हैंडआउट तो मिलता ही, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्रक्स बोलते हैं, बट उसके अलावा भी आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लास पीपीटीज, वैल्यू एनरिचमेंट मटीरियल, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज है, एंड एट अ वेरी नॉमिनल फी स्ट्रक्चर वी हैव केप्ट दिस। सो जो हमारा बैच है मैंने बताया स्टार्ट हो चुका है। अब कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, एडिशनल कन्फ्यूजन है,
तो आप मुझे इन दोनों आईडीज़ पे रीच आउट कर सकते हो। इंस्टा ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप किसी आईडी से अपनी या किसी और की आईडी से आप चाहो तो इस पर डाउट भेज सकते हो, नहीं तो ईमेल पे। हाँ, आप में से वो बच्चे जो स्टडी आईक्यू के किसी प्रोग्राम में पहले से एनरोल्ड है ना, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है हमारे, किसी ना किसी कोर्स में एनसीईआरटी वगैरह में आप एनरोल्ड हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है, जिसके लिए अगेन आपको मुझे रीच आउट करना होगा इन्हीं दोनों आईडीज़ पे, और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और जिस कोर्स में आप एनरोल्ड थे वो प्लस अपना पूरा नाम जो रजिस्टर्ड है कोर्स में वो मुझे बता देगा, ये 3 डिटेल्स दे दीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड मिल जाएगा क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट हो। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के कंटेंट को फ्री में एक्सेस करने के लिए कई सारी पीडीएफ्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है पिछले 10-12 सालों का, वो आपको इस आईडी पे मिल जाएगा, एक बार उसको आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है ना, हर कोर्सेज पे नए बच्चे यूएस लाइव लगाएंगे, सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट जो है वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको डेमो भी दे देता हूँ कि आपको एडमिशन एक्चुअली लेना कैसे है, कैसा आपको साइट पे दिखता होगा। स्टडी आईक्यू को आपको टाइप करना है, जैसे ही आपने टाइप किया ऑप्शन के कोर्सेज के अंदर में, ऑप्शनल जो लाइव कोर्सेज है इसके अंदर में आप जाइए, यहाँ पर आपके अलग अलग जो ऑप्शन है ये आपको लिस्टेड देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर क्लिक किया, 18,000 के आसपास ये प्राइस अभी दिखा रहा है, 18-19 हज़ार, लेकिन यूएस लाइव लगाता है ये कोर्स 14,999 में 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो ट्राई टू रीच मी आउट एनी टाइम। गॉड ब्लेस यू, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।